મેડમ ઓલું જોઈન થાજો મીટિંગ સર મોકલી લિંક મીટિંગની લિંક ઓનલાઈન મીટિંગ છે ને એમાં કોઈ નેમ બહુ ખરાબ લાગશે આપણે જોઈન થાય. Yeah. Good morning, Monica ma'am. Good morning, Chirag sir. How are you? Yes, fine, ma'am. Okay. Hi, Dr. Chirag Sawaliya, and I'm a research assistant in this pre-heart department. There is my colleague also, Miss Anjali Rathod is there also. So now I request to our chair professor, Pat Setpal sir, to chair the session. Please, Pat sir. Hello. Very good morning to you, ma'am. We welcome you as well as our participants on behalf of Solas University's Bihar IPR chair. Today we are having a session on uh, maximizing the value, leveraging industrial design rights for business growth. How industrial design is helpful for leveraging the growth of the business. Ma'am, we would like to welcome you here on behalf of Soras University as well as all the participants to pay attention. And if you are having any questions, we'll be taking the questions at the end of the session. Also, one thing to mention, ma'am, today we are having this meeting and it will be recorded and it will be kept as a resource on our YouTube channel also. So in the future, anytime, if anytime there anyone is interested for this design process of design filing or design registration, so they can access it and they can view it. So we welcome you again, and I now hand over the session to you, ma'am. Thank you so much, sir. So yes, it was wonderful to share all the thoughts related to intellectual property to everyone, and definitely I'll stick with the IPR. Just allow me 1 minute. Let me share my screen. After that, we will start. So, sir, just yes.
Yes, it is visible. It is visible, ma'am. Perfect. Thank you so much. So yes, today we're gonna discuss about intellectual property. Okay, and now first let me tell you about my firm, about Akshay P Associates. Yeah, So ma'am, can you make it into presentation mode? sorry. Can you share the PPT in presentation mode? Yeah, allow me 1 minute. Allow me just 1 minute. Is it okay now? Ma'am, I think you should share either the window that is having a presentation mode or either share the full screen so that Yes, I whenever you have start. opened full screen mode. Can you please check now? Sir, is this okay now? Yes, you can. Yes, it is fine. Yes, you can. Perfect. So first of all, we have a company named Aksh IP Associates. We have a full-fledged intellectual property service providers, and we deal into intellectual property that pertains patents, trademark, copyright, and design. And myself, Monica, I am the partner here in Aksh IP Associates. I have around 15 years of experience, and right now we are serving a number of clients like Wipro, Smart School, SchoolNet India, WA, Cycle, TCP Wave, and a lot of big giant organizations. So yes, first लेट मी टेल यू व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है. फॉर एग्जांपल एवरीवन, हम लोग किसी घर में रहते हैं, किसी जगह पे रहते हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ प्रॉपर्टी के लिए पैसा देते हैं एंड वी गेट द राइट ओवर द प्रॉपर्टी. एम आई राइट? वेरी सिंपल. वेरी सेम वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या हुआ? द प्रॉपर्टी दैट वी क्रिएटेड विद आवर माइंड. इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हुआ? माइंड. तो इट मीन्स जो भी हम प्रॉपर्टी अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं ना कि गवर्नमेंट हमें उसका भी राइट दे, कि कोई और बंदा या कोई और इंसान उस सेम चीज को यूज नहीं कर पाए. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल सर, बिकॉज आई हैव अ हाउस, आई हैव अ होम. अब फॉर एग्जांपल यू आर द पर्सन इज नॉट इनवाइटेड एट माय होम, तो वो एंटर नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, क्योंकि वो घर मेरा है ना. द वेरी सेम वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गवर्नमेंट किस लिए देती है कि ये इन्वेंशन या ये डिजाइन या फिर ये ट्रेडमार्क आपका है, अब कोई और इसको यूज नहीं कर सकता है. अगर आपके पास किसी चीज का गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, इट मीन्स ये कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं है. आपने कोई अपने दिमाग से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट किया, तो आप चाहेंगे ना, मैंने इतनी मेहनत किया, मैंने इतना दिमाग लगाया, कोई और बंदा इसको यूज नहीं करे विदाउट योर परमिशन, जैसे हम अपनी हर प्रॉपर्टी के लिए करते हैं. इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि कौन देता है? गवर्नमेंट देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट आपको 5 साल के लिए राइट देती है. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसको गवर्नमेंट 10 इयर्स के लिए राइट देती है, और कुछ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट लाइफ लॉन्ग राइट्स देती है. ठीक है, तो देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी दैट यू क्रिएटेड विद योर माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास राइट आ गया, ग्रांट आ गया, तो गवर्नमेंट आपको क्या कहती है? यू हैव द लीगल प्रोटेक्शन. लीगल प्रोटेक्शन फॉर व्हाट? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेटेंट आ गया या फिर कोई डिजाइन का रजिस्ट्रेशन आ गया है,
तो डेफिनेटली अगर कोई बंदा सेम डिजाइन वो बनाएगा या सेम टेक्नोलॉजी यूज करेगा, तो आई कैन से कि नो, दिस इज माय लीगल राइट, आई हैव द प्रोटेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और पेटेंट और डिजाइन, तो प्लीज डोंट यूज इट। जैसे सीधी सी बात है, जब हमारे घर में कोई बंदा आता है, दे हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम आवर साइड, है ना, कि ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आएगा रुक सकता है, नो, दे हैव टू टेक परमिशन बिकॉज आई हैव द राइट ओवर माय प्रॉपर्टी। द वेरी सेम वे आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसी है, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन यस, दिस इज द प्रॉपर्टी जिसके आपके पास राइट है, ठीक है। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, तो देयर आर मेजरली 4 वर्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट इज पेटेंट। देखिए पेटेंट क्या है, अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो It is not moving. Your presentation is not. Your presentation is still moving. प्रेजेंटेशन इज Are you changing the slide or not? सर आपकी तरफ से इको बहुत ज्यादा आ रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Ma'am, are you changing the slide? नो सर, दिस इज द ओनली स्लाइड, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अभी बस आई एम एक्सप्लेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, बिकॉज़ दिस स्लाइड इज Extremely, okay, extremely sorry, ma'am. I thought you have changed the slide, but it will not. show. नो, बिकॉज़ सी अभी मैं डिजाइन को डिस्क्राइब करूंगी, बट बेसिकली मैं बहुत बेसिक ओपिनियन दे रही हूँ, चीज बता रही हूँ व्हाट एग्जैक्टली द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यस, तो देखिए जब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए मेरी ये, सर कैन यू प्लीज म्यूट, या सो सी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल सर आई हैव अ माउस, ठीक है, मेरे हाथ में माउस है, ये जैसे मैं मूव करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे लैपटॉप पे जो भी है स्क्रीन मूव करती है, कुछ भी कंट्रोल कर सकती हूँ मैं, राइट। तो ये क्या हुई, एक टेक्नोलॉजी हुई है ना। या फिर जैसे अपने घर में एसी काम करते हैं, टीवी काम करते हैं, लाइट्स काम करती हैं, ये सारी क्या चीज हुई, आपकी टेक्नोलॉजी। अगर किसी टेक्नोलॉजी को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे सर, पेटेंट प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक है। सेकंड हुआ डिजाइन प्रोटेक्शन। आपने आजकल बहुत सारा कॉलेज में सुना होगा डिजाइन रजिस्ट्रेशन, या फिर उसको लोग डिजाइन पैटेंट बोलते हैं, बट एक्चुअल टर्म है इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब डिजाइन प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ, लेट्स टेक अ सेम माउस, कैसा ये दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है, बॉटम से कैसा दिख रहा है, लेफ्ट से कैसा दिख रहा है, इस तरह के हमें 7 व्यूज गवर्नमेंट को देने होते हैं। अगर वो दे देते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, डिजाइन रजिस्ट्रेशन का राइट दे देते हैं कि हाँ भाई ये डिजाइन अब आपका है, कोई भी बंदा सेम डिजाइन इस माउस का नहीं बना सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड इज द ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल सर, मेरी कंपनी का नाम है AKSH अक्ष IP एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मान के चलिए आपने मेरे को इनवाइट किया कि मोनिका फ्रॉम अक्ष IP एसोसिएट्स प्लीज कम फॉर द सेमिनार, या फिर आपकी नॉलेज अच्छी है, आप प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अब क्या हुआ, आप गूगल पे सर्च करने लगे अक्ष IP एसोसिएट्स को, जो मेरी साइड वाला दुकान ऑफिस है उसका नाम भी अक्ष IP एसोसिएट्स है, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, और आप मेरी बजाय किसी और को चूज कर लेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आप किसी दुकान का नाम या बिजनेस का नाम, कोई ब्रांड नेम रखते हैं, तो कोई और बंदा उस ब्रांड नेम को नहीं रख सकता है, तो उस प्रोटेक्शन को अपन क्या बोलते हैं सर, ट्रेडमार्क। तो देखिए फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें पेटेंट कराना पड़ेगा। डिजाइन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ दिखने का तरीका अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमारा क्या हो गया सर, डिजाइन प्रोटेक्शन हो गया। किसी कंपनी का नाम प्रोटेक्ट करना है तो हमें ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। और अगर कोई कंटेंट है, जैसे सर आप लोग प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी है, आप कोई कंटेंट लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, उसका पूरा कंटेंट आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, कॉपीराइट कराना पड़ेगा। तो मेजर 4 ही वर्टिकल्स पे मैं आपको बता रही हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड डिजाइन। अगर आपको इन चारों में कहीं कोई पॉइंट है, मतलब लाइक डाउट है, तो प्लीज आप बता सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको फिर से दूंगी इंटेलेक्चुअल इन चारों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर वी विल प्रोसीड विद द स्लाइड्स। सी आई हैव अ टम्बलर इन माय हैंड, ठीक है, आपको टम्बलर दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो टम्बलर है ना, कैसा ये दिख रहा है, ऊपर से कैसा दिखता है, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, ये हमें 7 व्यूज प्रोडक्ट के देने पड़ते हैं और हमें क्या मिल जाता है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब नाउ कम टू द पेटेंट। अगर ये टम्बलर जो है, जैसे मैं रूम में आती हूँ, ये बोलता है हे मोनिका ड्रिंक आउट ऑफ मी, तो डेफिनेटली इस टम्बलर के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है जिसको ये अंडरस्टैंड हुआ कि मोनिका रूम में आ गई है। तो उस टेक्नोलॉजी को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
पेटेंट फाइल कराना पड़ेगा। अब आप समझिएगा, डिजाइन से सिर्फ हमें दिखने का तरीका प्रोटेक्ट हुआ है, लेकिन कैसे वो काम कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसको अगर हमें पेटेंट प्रोटेक्ट करना है तो हमें पेटेंट मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड आप देखिए, इसके ऊपर ना एक ब्रांड नेम लिखा हुआ है, जैसे एमबी। तो एमबी क्या है? ब्रांड नेम। इस कंपनी का नाम क्या था? एमबी, मसल बेल्जर वटेवर। तो इस ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या कराना पड़ता है? ट्रेडमार्क। ऐसे अगर कुछ कंटेंट लिखा हो तो उसके लिए कॉपीराइट। आई थिंक दिस इज sufficient to understand what is the intellectual property right verticals. आपको किसी को भी कुछ डाउट है, you can ask, otherwise I'll proceed further with the slides. Yeah, so first is design. So now we are not describing about design, patent, trademark and copyright. So this session is specifically for the design. तो first slide talks about design. Design है क्या? Design के लिए क्या आपको प्रोटेक्शन मिलती है? देखिए, तो डिजाइन की जो डेफिनेशन क्या है? फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंट एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ लाइंस और कलर्स। अगर आपने किसी 2D में या किसी 3D प्रोडक्ट पे इसको लगा दिया है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, या फिर जिसको अपन डिजाइन पैटेंट भी बोलते हैं, कि व्हाटएवर द प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि देखिए अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को प्रोटेक्शन कौन देता है आपको? डिजाइन रजिस्ट्रेशन। देखिए फॉर एग्जांपल सेम ये बोतल है, तो अगर मेरे को इसका डिजाइन प्रोटेक्शन मिलेगा तो मुझे किस चीज का मिलेगा कि नीचे से बहुत ब्रॉड है, फिर पतली है, फिर ब्रॉड है, एज इट इज प्रोटेक्शन मुझे मिला है। तो ये जो बोतल है, सेम कोई और कंपनी सेम डिजाइन की बोतल नहीं बना सकती है, ठीक है। तो डिजाइन प्रोटेक्शन किस चीज को मिलता है कि आपकी शेप क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या फिर आपका, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा रखा है, फीचर्स ऑफ द शेप। एक ऑरेंज कलर का मैंने एक सर्कल बनाया है, या एक ट्री बनाया है, या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस बनाई है। इन सबको आप क्या कर सकते हैं? डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें डिजाइन में इंक्लूड नहीं होती है, वो चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी का मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैंने जब इसके 7 व्यूज डाले तो मैंने साथ में ना ये भी दिख रहा है, तो ये आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, मैं इस डिजाइन प्रोटेक्शन में इस चीज को प्रोटेक्ट, एमबी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमबी किसका पार्ट है सर? आपका ट्रेडमार्क का, क्योंकि ये इसके ब्रांड नेम की प्रोटेक्शन है ना। तो जब आप डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन में उसका दिखने का तरीका प्रोटेक्ट होता है, लेकिन आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट कभी भी प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। आपने कहा मोनिका मैंने एक इन्वेंशन बनाई है, इसी की मैं एग्जांपल बोलती हूँ। आपने बोला मैंने एक इन्वेंशन बनाई है कि मोनिका जैसे ही मैं आप रूम में आएंगे ये आपके पास आ जाएगा, मुझे इसका डिजाइन कराना है। तो भाई देखिए, इस के अंदर कोई सेंसर होगा, कोई प्रोसेसर होगा, कोई माइक्रो प्रोसेसर कोई लगे होंगे, तभी तो वो मेरे पास आ रहा है। तो वो डिजाइन प्रोटेक्शन में आएगा ही नहीं। बहुत बार प्रोफेसर्स मेरे पास आते हैं और दे आस्क मी कि मोनिका आई नीड टू प्रोटेक्ट अ एआई एमएल एल्गोरिथम, कि वो कैसे काम कर रही है। हाउ वाली चीज डिजाइन में कभी प्रोटेक्ट नहीं होती है। डिजाइन में आपकी प्रोटेक्शन किस चीज की होती है? सिर्फ और सिर्फ उसके दिखने के प्रोटेक्शन मिलती है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये कहते हैं हाउ, कि वो काम कैसे कर रहा है, तो आपको डिजाइन पैटर्न की तरफ नहीं जाना है, आपको किसकी तरफ जाना है? पेटेंट की तरफ, जिसको अपन यूटिलिटी पेटेंट बोलते हैं, या फिर आप लोग प्रोसेस पेटेंट की बात करते हैं। तो डिजाइन इज जस्ट अ मियर दिखने का तरीका। अगर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, देन ओनली वी विल गो विद द डिजाइन। सो यहाँ पे मैंने ना बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताया है कि जो डिजाइन है वो आपका कवर क्या करता है? ओनली एस्थेटिक व्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक फेंटा की बोतल है, आपने कभी मिरिंडा की बोतल भी देखा होगा, कोको कोला की भी देखा होगा, लिम्का की भी देखी होगी। सबकी बोतल की शेप जो है वो बिल्कुल अलग है। और ये अगर फेंटा की बोतल जो एज इट इज है, लिम्का सेम बोतल लॉन्च करेगी तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन, इस डिजाइन की प्रोटेक्शन किसके पास है? फेंटा के पास है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द लुक नीड नॉट टू बी हैव फंक्शनल एप्लीकेशन। इट मींस हाउ, कि वो फंक्शनल कैसे करता है, काम कैसे करता है। डिजाइन रजिस्ट्रेशन में उसकी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है। तो आपको डिजाइन में किस चीज की प्रोटेक्शन मिलती है? उसके एस्थेटिक लुक की प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे मैंने फेंटा का एग्जांपल दे रखा है सर। ये आई थिंक एक और मैंने एग्जांपल दिया है, आप सब लोगों को पता होगा कि एक ब्रांड है इंदुलेखा, ठीक है। ये जो इंदुलेखा की बोतल है सर, ये बहुत अच्छा इनका आइडिया था कि जिनमें इनको ऑयलिंग करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो आपके
ब्रशेस से दिख रहे हैं, इससे ना ऑयल आ जाता है एंड बहुत इजी हो जाता है ऑयलिंग करना आपको। लेकिन आप सोचिए इंदुलेखा ने जब इतना अच्छा डिजाइन बनाया तो बहुत सारे मार्केट में प्लेयर थे, चाहे वो कोकोनट ऑयल वाले थे और भी बहुत तरह की ब्रांड्स थी, वो क्यों नहीं लेके आ पाई इस सेम डिजाइन को मार्केट में? क्योंकि उन लोगों ने इस डिजाइन को अपने नाम पे प्रोटेक्ट कर लिया था। अगर वो इस डिजाइन को रजिस्टर ना कराते तो क्या होता, हर कंपनी हर ब्रांड यही सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देती, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो इसमें जो इंदुलेखा है ना वो प्रोटेक्शन नहीं मिली है इस क्लाइंट को, क्योंकि इंदुलेखा किस चीज में कवर होगा, उसका ट्रेडमार्क में। बट यस, जो बोतल की शेप है, शेप की प्रोटेक्शन उसको किस चीज से मिली है, इस डिजाइन रजिस्ट्रेशन से। देखिए अब जब देखो डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो सेम डिजाइन का बोतल कोई और कंपनी बिल्कुल नहीं बना सकती है, ठीक है। देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल सैमसंग के फोन का दिखाया है। सैमसंग के फोन ने भी अपने हर डिजाइन को प्रोटेक्ट किया होता है, इसीलिए तो सैमसंग का रेप्लिका कोई और कंपनी नहीं बना सकती है। हर किसी डिजाइन में, हर किसी फोन में, हम सब लोग फोन यूज करते हैं, आप अगर देखेंगे तो हर किसी के फोन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से वो मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। अब एप्पल के फोन है, आपने कभी देखा है कि एप्पल का कॉपी हो गया, जो उनकी कर्व शेप है, क्या चीजें हैं, वो कभी कॉपी नहीं हो सकती, बिकॉज एप्पल ने, बड़ी बड़ी हर कंपनी ने अपने छोटे छोटे पुर्जों तक को भी क्या कराया होता है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई बंदा उनके डिजाइन को रेप्लिकेट करेगा तो उनको बहुत बड़ा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। दे हैव टू, बिकॉज दे हैव द राइट फॉर द लीगल एक्शन। यही तो आपको राइट मिला है ना कि नो वन कैन यूज इट, दे हैव द डिजाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको ये बेसिक सा बताया कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन होता क्या है। डिजाइन रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ उसके दिखने का तरीका, कैसा वो प्रोडक्ट दिख रहा है, उस चीज की प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन इंडिया में होता कैसे है। देखिए कोई भी डिजाइन कैन बी रजिस्टर्ड एज इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो न्यू है। न्यू की क्या डेफिनेशन होती है सर, कि वो चीज ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। फॉर एग्जांपल सर मैंने देखा कि ना ये माउस ऑलरेडी किसी का था, ठीक है, मैंने गूगल पे चेक किया और वो मुझे दिख गया, मैंने क्या किया, इसी को सेम रेप्लिकेट कर दिया और अपनी डिजाइन एप्लीकेशन फाइल कर दिया। मान के चलिए इस कंपनी ने डिजाइन फाइल ही नहीं किया था, मैंने एज इट इज डिजाइन उठाया और फाइल कर दिया, तो भी मुझे वो डिजाइन ग्रांट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल था वो तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, जो आपका डिजाइन है वो न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए न्यू का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने मुझे बोला मोनिका मेरा ना बहुत ही कंटेंट है, या फिर मैंने जो भी राइटिंग लिखी है, जो भी इन्वेंशन की है, जो भी डिजाइन बनाया है, बहुत नया है। नए की डेफिनेशन क्या है सर, कि वो पहले से ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करना होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट क्राइटेरिया या फिर आपका जो चीज है वो क्या है, वो पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपने अपना डिजाइन बताया है वो नया होना चाहिए या ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड की फीचर्स आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पे यहाँ पे सब लोग मिस्टेक करते हैं वो ये कहते हैं कि मैडम वो काम कैसे कर रहा है, मेरी इन्वेंशन और मेरा आइडिया काम कैसे कर रहा है, कि ये बोतल आपके पास कैसे आ जाती है, ये मेरी इन्वेंशन है। लेकिन बंदा क्या बोलता है कि मुझे तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल फंक्शन है, वो डिजाइन से आपको कभी नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल और यूजफुल फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वो आपका डिजाइन रजिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होता है। जब आप डिजाइन करते हैं तो वो आपको जो भी व्यूज है, मतलब टॉप से, फ्रंट से, बॉटम से, वो आपकी आंखों से देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये डिजाइन तो बहुत ही अलग है। तो आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में इस चीज का ध्यान रखना है कि वो नया और ओरिजिनल होना चाहिए, उसका टेक्निकल फीचर कुछ भी क्लेम नहीं होगा, और जो भी डिजाइन आप फाइल कर रहे हैं वो दिखने में पता लगे कि हाँ भाई ये चीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन मेरी इस तरीके से वो अलग है। तो तभी आपको जो है डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर कोई किसी ने फॉर एग्जांपल ये पेन है और किसी ने सेम रेप्लिका बना दिया तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये पेन है और मैंने क्या किया, इसके पीछे एक सर्कल बना दिया, लाइनें चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली मैं डिजाइन के लिए
अप्लाई कर सकती हूँ उस केस में, क्योंकि अब ये वाला जो डिजाइन मैंने अभी बनाया है जिसके ऊपर सर्कल बना दिया है, डेफिनेटली वो पहले था ही नहीं कभी, और वो पब्लिकली किसी को आइडिया भी नहीं था, और जो मेरे प्रोडक्ट दिखने में है वो अलग है, तो डेफिनेटली उस केस में मैं डिजाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है डिजाइन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। वही रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफ स्क्रीन बहुत ही स्कैंडरस वर्क को आप प्रोटेक्ट कराने की कोशिश करें। जैसे कुछ आपने देखे होंगे अमेजोन के केसेस हुए थे जिसमें बहुत ही गलत कंटेंट को वो लोग डिजाइन करना चाह रहे थे, तो ऐसे ऑफ स्क्रीन या स्कैंडरस डिजाइन्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि जो डिजाइन है वो क्या होता है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा हो, या फिर आपकी जो सिक्योरिटी है इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ आपने ऐसा कर दिया, मान के चलिए इंडियन फ्लैग को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या कुछ आप ऐसी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया की कुछ चीजों को यूज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो डिजाइन में मान के चलिए आपने माइनर चेंजेस भी किया तो भी आप डिजाइन करा सकते हैं, लेकिन एज इट इज अगर ऑलरेडी वो चीज अवेलेबल है तो आप उसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हु कैन फाइल द डिजाइन। देखिए फर्स्ट है जो जिसने डिजाइन बनाया, फॉर एग्जांपल मोनिका क्रिएटेड अ डिजाइन ऑफ अ माउस, तो यस आई एम द ऑथर ऑफ द डिजाइन, सो आई कैन फाइल ऑन बिहाफ ऑफ मी ओनली, मैं अपने नाम पे डिजाइन फाइल कर सकती हूँ, बिल्कुल। सेकंड केस क्या है कि मैंने डिजाइन बनाया और किसी और को मैंने वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा पर्सन है जिसको मैंने ट्रांसफर किया है, तो वो इंसान, वो न्यू ओनर बन गया, वो भी अपने नाम पे डिजाइन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब मान के चलिए थर्ड सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कहा मोनिका मैं तो कैड कैम का इंसान नहीं हूँ, आई नीड अ डिजाइन फ्रॉम योर एंड, आप मेरे को डिजाइन बना के दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए काम मेरा है, ठीक है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात होती है। जिसने डिजाइन बनाया वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं अपने हाथ में रखूंगा, कि डिजाइन तो मैं अपने नाम पे लूंगा, लेकिन हाँ आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने अपना आइडिया दिया, बनवाया मुझसे, लेकिन क्योंकि मैंने वो वर्क बनाया है इसीलिए वो डिजाइन मैं क्या करूंगा, मैं अपने नाम पे फाइल करूंगा, आप उसको यूज कीजिए। ठीक है, या फिर किसी बंदे ने किसी डिजाइन को अक्वायर कर लिया है तो वो भी फिर उस डिजाइन को अपने नाम पे फाइल कर सकता है। इसमें बहुत ही सिंपल हमारे नॉर्मल लैंड की बात करके चलिए कि किसके पास राइट होते हैं। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो मैं डेफिनेटली मेरे नाम पे रजिस्ट्री करा सकती हूँ, या फिर मैंने किसी और को दे दिया तो वो अपने नाम पे रजिस्ट्री करा सकता है, जैसे हमारी ट्रांसफर की प्रॉपर्टीज होती हैं। या फिर अगर किसी ने किसी चीज को एक्वायर कर लिया तो वो बंदा भी उस चीज के लिए डिजाइन फाइल कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी को रेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही इन प्रॉपर्टीज के साथ भी आप सेल कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, किसी को लीज पे दे सकते हैं डिजाइन यूज करने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, तो हु कैन फाइल, आई थिंक सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, जिसने डिजाइन बनाया वो भी कर सकता है, अगर उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो भी डिजाइन फाइल हो सकता है, जिस बंदे ने बनाया वो भी अपने नाम पे डिजाइन फाइल कर सकता है। तो यस, हु कैन फाइल द ऑथर, केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में आपका जो सेकंड पर्सन है वो भी कर सकता है, जिसने डिजाइन बनाया वो भी कर सकता है, अगर किसी ने किसी को एक्वायर कर लिया है तो वो भी उस डिजाइन आर्टिकल को अपने नाम पे फाइल करा सकता है। देखिए अब आपको ये पता लग गया कि डिजाइन आपका कोई टेक्निकल फीचर आप कवर नहीं कर रहे हैं, आपको ये भी पता लग गया कि आपका डिजाइन बहुत ही अलग है, यूनिक है, आपने उसके 7 व्यूज भी बना लिए। अब उसको फाइल कहाँ करेंगे आप, देखिए फाइल करने के लिए हमारे पास 4 ऑफिसेज है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो देखिए जो डिजाइन रजिस्ट्री है, यूजुअली पेटेंट के केस में क्या होता है, अगर मुंबई के पेटेंट ऑफिस के पास गई है तो मुंबई पेटेंट ऑफिस ही उसकी टेक केयर करता है, दिल्ली में गई है तो दिल्ली ही टेक केयर करता है, कोलकाता में गई है कोलकाता करता था। लेकिन डिजाइन में क्या होता है सर, डिजाइन में जो भी आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई है, किसी भी ज्यूरिडिक्शन में फाइल हुई है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है आपके पास, कोलकाता में, क्योंकि डिजाइन का सारा काम कौन से पेटेंट ऑफिस में होता है, डिजाइन पेटेंट ऑफिस में। तो डिजाइन पेटेंट ऑफिस कोलकाता में, तो आपने किसी भी जगह पे, एड्रेस ऑफ सर्विस का मतलब होता है या तो वो एप्लीकेंट का एड्रेस है, अगर एप्लीकेंट ने किसी अटॉर्नी को हायर किया लाइक अस, तो वो हमारा एड्रेस लाइक दिल्ली का एड्रेस होता है। लेकिन हाँ, डिजाइन क्या होता है, वो जितने भी हमने डॉक्यूमेंट फाइल किए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ चले जाते हैं, कोलकाता पेटेंट ऑफिस में, और वहीं पे वो एग्जामिन होता है फिर। तो यस, वेयर टू फाइल, पेटेंट के केस में आप कहीं पे भी फाइल कर सकते हैं, डिजाइन में आप फाइल कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके कोलकाता में। ठीक है,
अब देखिए, अब डिजाइन रजिस्ट्रेशन क्या है इंडिया में, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए अब डिजाइन रजिस्ट्रेशन, आप कहेंगे कि मोनिका इसका बेनिफिट क्या है, आपने डिजाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो सबसे पहला जो है वो आपको एक लीगल राइट मिल जाता है। लीगल राइट फॉर व्हाट? लीगल राइट इस चीज का मिल जाता है कि अगर कोई और आपकी प्रॉपर्टी पे कहता है कि मैं बनाऊंगा, या आपकी जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी जो आपने सेम डिजाइन बनाया था, तो कोई भी मार्केट में अगर सेम प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो आप उसको रोक सकते हैं कि प्लीज प्लीज स्टॉप वर्क ऑन द प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज माय राइट। क्योंकि आपको किसने राइट दी है? गवर्नमेंट ने। तो देखिए जब आपके पास डिजाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके पास एक स्टैट्यूटरी राइट है, इट मींस आपके पास एक लीगल राइट मिल जाता है। लीगल राइट किस चीज के लिए मिल जाता है? ताकि किसी और को आप सेम प्रोडक्ट बनाने से रोक सको, ठीक है। सेकंड, देखिए जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो टेरिटोरियल बेस्ड राइट होता है। अब देखिए टेरिटरी बेस्ड राइट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास इंडिया में कोई डिजाइन को रजिस्ट्रेशन मिला है तो आप किसको रोक सकते हैं? इंडिया में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा यूएस में सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। नो, क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि जो डिजाइन, जितने भी हमारे आईपीआर होती है, चाहे वो पेटेंट है, चाहे वो ट्रेडमार्क है, चाहे कॉपीराइट है, चाहे वो डिजाइन है, वो सबकी प्रोटेक्शन टेरिटरी बेस्ड राइट है। तो मतलब अगर मुझे इंडिया में प्रोटेक्शन मिली है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किसी और को बनाने से रोक सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अगर एक बार आपका डिजाइन रजिस्टर हो गया तो जो डिजाइन का ओनर होता है ना, वो दूसरों को बोल सकता है कि तुम ना तो प्रोड्यूस करोगे, ना इंपोर्ट करोगे, ना सेल करोगे, या फिर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करोगे। जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा डिजाइन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि अगर आपके पास डिजाइन रजिस्ट्रेशन है इंडिया में तो आप इंडिया टेरिटरी में कोई भी बंदा अगर उस डिजाइन को बना रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, आप सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री होने के बाद। कई बार लोग आते हैं कि मैडम मेरा डिजाइन जो है फाइल हो गया है, अब मुझे दूसरे बंदे को रोकना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। आप कब तक नहीं रोक सकते हैं? जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया है। इसी चीज को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। सर देखिए ये एक मान के चलिए हमारे पास चिराग सर हैं, एक मोनिका है, ठीक है। मेरा घर है लेफ्ट में, चिराग सर का घर है राइट में, ठीक है। बीच में ना हमारे नॉर्मल सा एक प्लाट पड़ा था, तो मैंने बोला चिराग सर ने ना यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें कुछ उगा रखी है, ठीक है, इस प्लॉट में जो खाली पड़ा है। मोनिका ने क्या किया, इस प्लॉट का फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया बयाना दे दिया और बोला कि नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, चिराग जी आप अपना सब कुछ सामान यहाँ से हटा लीजिए इस प्लॉट से। अब चिराग सर भी बहुत इंटेलिजेंट थे, तो चिराग सर मुझे बोलते हैं मोनिका यू डोंट हैव एनी लीगल राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी। अभी तो आपने सिर्फ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपए बयाना दिया है, तो आप मुझे नहीं हटा सकते। कब तक नहीं हटा सकते? जब तक आपके पास आपके नाम की रजिस्ट्री नहीं हो जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉपर्टी का राइट आपके पास कब आता है? जब आपके पास उसकी रजिस्ट्री हो जाती है ना, राइट। तो वेरी सेम वे जब आप डिजाइन फाइल करते हैं या पेटेंट फाइल करते हैं या ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, आप फाइल कर देते हैं, आप क्लेम करते हैं कि मैंने इतनी तारीख को ये प्रॉपर्टी मेरी थी, लेकिन आप किसी के ऊपर लीगल एक्शन कब ले सकते हैं? जब आपके पास उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री आ गई है। जैसे आपके घर की जब रजिस्ट्री आ गई तब आप उसके लीगल आप ओनर हैं उसके, लीगली तभी आपके पास राइट है जब आपके पास रजिस्ट्री आ जाती है। वेरी सेम वे कोई भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके राइट्स आपके पास कब आते हैं? जब आपकी वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है, जब इंडिया में आप डिजाइन फाइल करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कि आपको प्रोसीजरल क्या चीज का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप यही देखेंगे ना कि आप सर्च कंडक्ट करेंगे कि भाई जो मैंने डिजाइन बनाया है वो किसी का ऑलरेडी तो नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आपने कोई डिजाइन बनाया वो ऑलरेडी किसी का है तो कोई सेंस नहीं बनती है किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को आप खुद के नाम से फाइल करें और वो रिफ्यूज हो जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक बहुत ही सिंपल सी कंडक्ट करनी पड़ती है सर्च, ताकि आप ये देख पाए जो आपका एक्चुअल डिजाइन है वो यूनिक है भी या नहीं है। मान के चलिए मैंने बहुत ही सिंपल सी बोतल बना दी, फिर मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल एज इट इज फेंटा जैसी बोतल है, तो मुझे पता है उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलना, क्योंकि वो फेंटा वाली बोतल उठा के ले आएंगे और कहेंगे कि भाई मोनिका ये तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फेंटा की बोतल तो ऑलरेडी अवेलेबल थी।
तो सबसे पहले आप कोई भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको सर्च करके देखना चाहिए कि आप कोई डुप्लीकेट किसी और का प्रोडक्ट तो डिजाइन प्रोटेक्ट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगा कि नहीं नहीं ये चीज तो ऑलरेडी मार्केट में थी ही नहीं, तभी आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम पे ही अपना आइडिया ड्रॉप कर देंगे अगर सेम डिजाइन किसी और ने ऑलरेडी करा रखा है तो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या हुआ कि हमें सर्च कंडक्ट करनी है टू चेक वेदर द सेम डिजाइन इज ऑलरेडी इन द मार्केट या फिर वो नहीं है। अगर नहीं हुआ तभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे, नहीं तो वी विल ड्रॉप आवर आइडिया। ठीक है, सेकंड स्टेप इज, अब जब हमें पता लगा कि यस हमारा डिजाइन तो यूनिक है, ऐसा कोई डिजाइन ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाने लगेंगे। ड्राइंग का मतलब हुआ कि ऑब्वियसली जो चीज हमें पेटेंट ऑफिस में सबमिट करनी है। अब जब हम बात करते हैं आपकी डिजाइन एप्लीकेशन के लिए, तो हमें 7 व्यू प्रोडक्ट के, जो भी आपका डिजाइन बनने की आपके माइंड में है या आपने बना लिया है, तो 7 व्यूज को आपको पेटेंट ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। जो 7 व्यूज होते हैं वो क्या होते हैं कि ये मान के चलिए ये मेरा प्रोडक्ट है, ये टॉप से कैसा दिखेगा, तो सिर्फ ये वाला कॉलम दिखेगा, है ना, बॉटम से ये वाला दिखेगा, लेफ्ट से ये, राइट से ये, फ्रंट से ये, बैक से ये। तो हमें इस तरह के 7 के 7 व्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सर्च कंडक्ट किया, सर्च में हमें लगा कि यस मेरा डिजाइन यूनिक है, तभी वी विल गो विद द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का मतलब क्या हुआ, हम उसकी प्रॉपर ड्राइंग्स बनाएंगे, सारे 7 व्यूज प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए आपने व्यूज भी प्रिपेयर कर ली, तो व्यूज प्रिपेयर करके आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप उसको क्या करेंगे, फाइल करेंगे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को हम फाइल कहाँ करेंगे, इंडियन डिजाइन पेटेंट के लिए हम इंडियन पेटेंट ऑफिस में उसको फाइल कर देंगे। ठीक है, जिसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डेफिनेटली आपको कुछ फाइलिंग की गवर्नमेंट फीस होती है। जैसे कोई इंडिविजुअल अपने नाम पे फाइल करता है तो उसको 1000 रुपए गवर्नमेंट फीस देनी पड़ती है, और अगर किसी एप्लीकेंट मतलब कॉलेज के नाम पे फाइल करते हैं तो उसको 4000 रुपीज गवर्नमेंट फीस देनी पड़ती है। तो आपने फर्स्ट स्टेप किया, सर्च किया, फिर आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और फिर आपने उसको इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल भी कर दिया, मान के चलिए। अब आपने जब फाइल कर दिया तो एग्जामिनर के पास वो एप्लीकेशन जाएगी चेक करने के लिए। अब एग्जामिनर को लगा कि नहीं ये तो डिजाइन बड़ा ही यूनिक है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, ग्रांट दे देगा। ठीक है, या फिर एक्सेप्टेंस करने के बाद सर्टिफिकेट इशू कर देगा। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, अगर उसको लगा नहीं नहीं ये तो डिजाइन ऑलरेडी किसी का था, तो वो आपके लिए एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू कर देगा, और वो बोलेगा कि ये देखो ये डिजाइन तो ऑलरेडी मार्केट में है, बाय कंसीडरिंग दिस डिजाइन वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस रजिस्ट्रेशन। फिर आप उसको आर्ग्यू करेंगे, नो सर दिस इज हाउ, मेरा डिजाइन इस तरह से अलग है, इसमें ये बकेट बनी हुई है उसमें नहीं है। अगर वो कन्विंस हो जाता है तो ठीक है, वो आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, नहीं तो वो कहेंगे कि भाई मेरे इस मैटर के लिए फिर से हियरिंग पे आओ। हियरिंग पे फिर मेरे वहां से अटॉर्नी वहां पे अपीयर होंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, सर देखिए ये डिजाइन ऐसे है और मेरा डिजाइन ऐसे है, डिफरेंस है, तो प्लीज मेक इट ग्रांट। अगर वो कन्विंस हो गया तो वो अपना डिसीजन में उसको ग्रांट कर देंगे, नहीं तो वो मैटर को हियरिंग के बाद रिफ्यूज कर देंगे। तो अब बहुत ही सिंपल सा, आपको 5 स्टेप में एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आपने सर्च कंडक्ट किया, आपको पता लगा कि हाँ भाई ये डिजाइन तो बहुत अलग है, तो आप इसको प्रोसीड करेंगे फाइलिंग की तरफ। प्रोसीड कर दिया आपने फाइलिंग की तरफ, तो उसके बाद क्या होगा, आप ड्राफ्टिंग करेंगे, मतलब सारा डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद फाइलिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। फाइलिंग करने के बाद एग्जामिनेशन उसका स्टार्ट होगा। अगर एग्जामिनेशन में वो अगर ओके है तो वो उसको ग्रांट कर देंगे, नहीं तो वो मैटर को रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं मुझे। यहाँ पे फिर मैंने लिखा है ड्यूरेशन क्या है रजिस्ट्रेशन की। आप जब पेटेंट कोई भी डिजाइन फाइल करते हैं तो 10 इयर्स के लिए आपको उसको राइट मिल जाते हैं, और आप उसको 10 इयर्स के बाद कुछ फर्दर पेमेंट करके 5 इयर्स के लिए रिन्यू भी करा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको डिजाइन सैंपल्स दिखा रखे हैं। जैसे ये एक डिजाइन है वेरिएबल डाइट प्लानिंग एंड हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस, जो कि मैंने ऑफिस में बनवाए थे फॉर माय क्लाइंट्स। तो ये क्या है, आपको कुछ डिजाइन के मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस दिखा रखे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिवाइस, एंट्री एग्जिट मैनेजमेंट डिवाइस, माइक्रोबायल एनालाइजर डिवाइसेस, और ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स इस तरीके से आते हैं। ठीक है, हेलो just 1 minute. Sir, can you hear me properly? Yeah, ma'am. Sir, मेरे को ये last question is because it's already like 1 o'clock. If you want to wrap it up fast, so I can do. Otherwise, मैं अभी भी थोड़ा सा fast ही कर रही थी,
बट अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा फास्ट करना है या ड्रॉप करना है तो मैं बहुत बेसिक भी बता सकती हूँ, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद द स्लाइड्स। ओके श्योर मैम। अभी आपको किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे डिजाइन होता क्या है, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट ही किया है क्योंकि मुझे पता है इट्स जस्ट 1 आवर। तो अभी आपको कहीं कोई किसी को कुछ भी डाउट है डिजाइन से रिलेटेड कि डिजाइन होता क्या है? नो मैम, यू कैन कंटिन्यू मैम, कैरी ऑन प्लीज। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो हमारा जो था कमर्शियलाइजेशन सपोर्ट आफ्टर। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन सर्टिफिकेट शेयर किए हैं और आपको ऊपर कुछ डिजाइन्स दिखाए भी हैं, लाइक उन्हीं के हमें 7 व्यूज जो हैं फाइल करने पड़ते हैं टू सिक्योर द ग्रांट। अब बहुत सिंपल सा कमर्शियलाइजेशन सपोर्ट आफ्टर आईपी ग्रांट। अब आप कहें कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अगर पेटेंट ग्रांट मिल जाता है तो उसकी क्या आपको कमर्शियलाइजेशन सपोर्ट मिलता है। देखिए, आपने अगर अपना आईपी को मार्केट रेडी प्रोडक्ट में बना दिया, ठीक है, और आपके पास एक डिजाइन का सर्टिफिकेट आ गया है, डेफिनेटली ग्रांट आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास इस स्पीकर का ग्रांट आ गया, ठीक है, मैंने बहुत ही छोटा सा हैंडी सा बनाया था, मेरे पास ग्रांट भी आ गया, तो व्हाट आई गोना डू, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी रेडी प्रोडक्ट्स में और इसकी बहुत मार्केटिंग करूंगी और बेचूंगी और आई अर्न मनी ऑल्सो। क्यों बेच सकती हूँ और क्यों कर सकती हूँ? बिकॉज इसका राइट मेरे पास है, कोई भी इंसान मेरे प्रोडक्ट को कॉपी तो कर ही नहीं सकता है, मैं राइट। या फिर सेकंड ऑप्शन में क्या करूंगी, मान के चलिए मैंने एक प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैंने मैन्युफैक्चर कर सकूं, तो मैं क्या करूंगी, उस टेक्नोलॉजी को जो मेरा डिजाइन बना है मैं उसको लाइसेंस कर दूंगी किसी बड़ी कंपनी के पास। उनको बोलूंगी प्रोडक्ट है, ये डिजाइन है, बहुत अच्छा है, यूनिक है, आप इसकी प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट में बेचो एंड यू कैन गेट द रेन्यूमरेशन इन एक्सचेंज ऑफ योर आइडिया। आप इंडस्ट्री पार्टनर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, देखिए आज की डेट में अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी इन्वेस्टर चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा होता है कि आपके पास आईपी क्या है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास आईपी है देन यू आर सिक्योर इनफ कि कोई बंदा आपको कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट में कोई भी चीज लेके आते हैं तो विद इन 15 डेज देयर आर अ लॉट ऑफ कॉपी कैट, आप उनसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? बिकॉज ऑफ द आईपीआर ओनली। क्योंकि अगर आपके पास आईपीआर है देन ओनली यू कैन सिक्योर योर आइडिया, योर प्रोडक्ट, योर टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसीलिए आपको आईपी सबसे पहले प्रोटेक्ट करना बहुत मैंडेटरी है। आप बिजनेस डेवलपमेंट मार्केट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं क्योंकि उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है, या फिर आप इंक्यूबेशन और मेंटरिंग सेशन के साथ, स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कमर्शियलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है कब, जब आपके पास आईपी का ग्रांट आ जाता है। उससे पहले आपके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उनको ये दिखेगा कि ये तो पेटेंट तो ग्रांट है नहीं, आज मैंने मार्केट में लॉन्च किया प्रोडक्ट, 36 कंपनीज और आ जाएंगी सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट में चल गया तो, और कंपनीज आके उसको बनाने लग जाती हैं। इसीलिए आपके पास अगर ग्रांट है तो सब लोग, इन्वेस्टर हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपनीज हो गई, वो आपके प्रोडक्ट को बहुत इजीली पैसा देने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई और बंदा मार्केट में इसको लॉन्च नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए ये आप कहेंगे कि और क्या बेनिफिट्स हैं एज इन कॉलेज में स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को, तो देखिए बहुत सारे आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प कर रहा है बाय कमर्शियलाइजिंग योर आईपी और इनोवेशंस को। तो क्या होता है कि बहुत सारे रेलेवेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, या फिर एमएसएमई की इनोवेशन ग्रांट्स हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जो आपको कमर्शियलाइजेशन के लिए पैसा देते हैं। अब आपने बहुत अच्छा डिजाइन बना लिया, बहुत अच्छा आपके माइंड में आइडिया है, लेकिन इतना पैसा आपके पास नहीं है डेफिनेटली, तो क्या कर सकते हैं आप, अप्लाई कर सकते हैं इन ग्रांट्स के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए, एंड गवर्नमेंट आपको बहुत पैसा देता है उन सब चीजों को मार्केट में कमर्शियलाइज करने के लिए। अब आपके पास एक बार कमर्शियलाइज आ गया, आपने वो पैसा यूज किया, उसी पैसे से आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं कि बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट ग्रांट के यूनिक आईपी के लिए। देखिए यूनिक, अगर आपका पेटेंट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, तो आप देखिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिलेगी। किस चीज के लिए? स्टार्टिंग, आपको एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं तो भी आपको फंडिंग मिलती है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप आपको पायलट प्रोजेक्ट के लिए, और लास्ट में आपको स्केल अप करने के लिए भी आपको पैसे देते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपका आइडिया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग मेंटरिंग आपको मिल जाती है, बिजनेस डेवलपमेंट की स्कीम्स मिल जाती है, आपको डिजाइन और पैटेंट फाइल करने की गवर्नमेंट आपको पैसा देता है। वो बोलते हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल को पैसा नहीं देना है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हैं तो वी विल पे टू द प्रोफेशनल, आप जस्ट गवर्नमेंट फीस दीजिए और आपका पेटेंट फाइल हो जाएगा, ठीक है। आप इन्वेस्टर के आगे, पार्टनर्स के आगे डेफिनेटली विजिबिलिटी हो सकते हैं, और कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं जो गवर्नमेंट देती है फॉर द पेटेंट्स, ठीक है। आप कैसे भी मतलब लाइक
वी इनोवेटर्स, आपको हम कमर्शलाइजेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए क्या ग्रांट स्कीम अवेलेबल है, हम वहाँ पे एप्लीकेशन आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपका पूरा बिजनेस प्रपोजल बना सकते हैं, टेक्निकल प्रपोजल बना सकते हैं ताकि हमें ग्रांट मिल सके। उसके बाद हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं इंक्यूबेटर सेंटर के साथ, एक्सेलरेटर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर आपका जब ग्रांट हो जाता है तो पोस्ट ग्रांट मॉनिटरिंग और कंप्लायंस सपोर्ट भी आपको जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। तो देखिए कमर्शलाइजेशन का पाथवे क्या है, आपको आईपी पर सबसे पहले प्रोटेक्ट करनी है, आपको देखना है मार्केट क्या है, आपको फिर गवर्नमेंट की ग्रांट और फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पायलट टेस्टिंग करके फिर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन definitely go with the commercialization, you can get a lot of fund from the government also, और आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे चीजों पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑल डन है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपका कोई भी कॉलेज है तो आप उसके लिए प्लान बना सकते हैं, ग्रांट एप्लीकेशंस, बिजनेस कोलैबोरेशन, और आप इनोवेशन वगैरह के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। बट हाँ, आपके पास डिजाइन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट यस डिजाइन के लिए यू शुड हैव अ यूनिक डिजाइन, उसके बाद डेफिनेटली यू कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। And thank you so much, all done from my side. In case of any doubt, in case of any questions, please do let me know. Thank you, ma'am. Pat sir. Yes. So thank you, ma'am. I request the participants, if you are having any questions, you can either write it in the chat box or either unmute yourself and ask the question. If anyone has questions related to design or patent also, you can ask. Definitely would love to explain in detail. I feel they are not having any questions from the participants. Any questions from the host institute, those who are attending from our university? You can also have any question, then you can unmute yourself and ask. Ma'am, have you said the validity of this design? What Yes is the sir, validity is 10 years sir. Validity of the design is 10 years sir. And it can be extended up to 15 years plus 5 years. Yes, Yeah. up to 5 years by paying a government fee sir. Okay. I'll share these slides also sir. Sure. So thank you very much, ma'am, for being here, sharing your valuable insights on the design, especially how it is filed, what are the different pros and cons, and how it is useful to commercialize the innovation in terms of design. We thank you on behalf of Soros University. We thank all the participants for being here and attend this insightful session. We thank you, Ox IP Associates, for sharing your valuable time and providing us your knowledge partner for the same. I Thank thank you. all my teams and colleagues who attended this session and have organized this event. This seminar or the recording of this meeting will be shared on YouTube, so anytime they can access regarding the design filing or what the approach for the design filing. Thank you, ma'am. With your permission, we are ending this meeting. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Okay sir, thank you so much. I'm leaving for the meeting. Thank you very much, Thank ma'am. you so much sir. Thank you. Bye bye sir.